like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जब कोविड-19 का कहर तारी था, कई ऐसी मोतबर और मुस्तनद शख्सियात इस दुनिया से चल बसी। उन्हीं में से जुनूबी हिंदुस्तान की एक मारूफ शख्सियत और इल्मी शख्सियत, जिन्होंने तकरीबन 45 साल दारुल सवेला रशाद में बहैसियत मुदर्रिस अपनी खिदमत अंजाम दी और जुनूबी हिंदुस्तान के लिए एक मनाजिर की हैसियत रखते थे, हज़रत मौलाना सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके। आज इस इलाके के रुकन असम्बली मोहतरम KJ जार साहब आपके दौलत के दे पर पहुँचे हैं। चलिए जानते हैं हज़रत से मुतालिक आपके एहसासात और इसके अलावा मौजूदा हालात और इस इलाके के बल्दी मसाइल और दीगर इशूज़ क्या हैं। ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ। ಈಗ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ಹಸ್ರತ್ ಮೌಲವಿ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡಿಂದಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಅರಬ್ಬಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಮಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಬಿಚುರಿ ಹಾಕಿದೆ। ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಮೇತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ AICCಯಿಂದ ಸಮೇತ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡಿಂದ ಯಾರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅವರು ಸಮೇತ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ। ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಮನೆ ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಇವರು A1 ಸಲೀಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು। ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಸಮೇತ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸರ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 160 ಬೆಡ್ಡು, ಒಂದು 100 ಬೆಡ್ಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 60 ಬೆಡ್ಡು ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು NIVಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ। ಆದರೂ ಸಮೇತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸುಮಾರು 40 NIV, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಒಂದು NIV ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜವರು ಅದು ಸಮೇತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಒಬ್ಬರು MLA ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। नाजरीन, मकामी रुकन असम्बली KJ जार्ज का आज हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब के घर का दौरा रहा और इलाके का भी उन्होंने जायज़ा लिया है। इस खुसूस में यहाँ के मकामी एक समाजी कारकुन मोहतरम A1 सलीम की काविशें यकीनन काबिल सताइश रही। चलिए जानते हैं KJ जार्ज से, रुकन असम्बली से आपकी क्या गुफ्तगू रही और कैसे मसाइल का उन्होंने तज़किरा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम A1 सलीम। रमज़ान में हज़रत का इंतकाल हुआ। जिस वक्त हज़रत का इंतकाल हुआ, मैं तब इंतकाल के फ़ौरन बाद मैं जार साहब से बात कराया। ऐसा एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है।
जो 44 साल से अरबी कॉलेज में खिदमत करने को थे करको। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि जार साहब आ सके, क्योंकि कोविड का पूरा शबाब पर था और उन्होंने ट्वीट करे और फ़ोन में बात भी करे, अफसोस करे। उस वक्त मैं उनके फर्जंदान से जार साहब की बात नहीं करा सका, तो उन्होंने 1 से 2 मरतबा बोला उनके घर को जाइए, वहाँ जाकर बैठ कर बात करेंगे करके बोल को की करके बोला। तो हज़रत के साथ साथ हज़रत का इंतकाल नहीं, हज़रत के अहलिया का भी इंतकाल हुआ था। एक बहुत बड़ा सदमा जो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते बच्चे, ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उनके घर को जाना, बात करना करके बोल को पिछले पीर के दिन यहाँ आने का प्रोग्राम तय हो को था। दूसरे प्रोग्राम की वजह से और ये ईद का मसला भी था, नहीं है। आज सवेरे फ़ोन कर को उनके पास वक्त लियो, पहले वहाँ जाएंगे उसके बाद दूसरे काम करेंगे करके बोले। वक्त के ऊपर है, उनके साथ बैठे, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करे। और उसके बाद ज़रा मौसमी मसाइल थे, वहाँ ऑफिस में भीड़ ज़्यादा होती है, मुझे बात करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ बोला एक हमारी नूर मस्जिद के सामने बेस्कॉम वाले केबल मोहरी के ऊपर से कंक्रीट डाल को बंद कर डाली। एक तो मस्जिद है, बाजू मदरसा भी है, तरबतुल बनना, खुदा न खास्ता क्या भी हादसा हुआ तो परेशानी का बाइस बन सकता है। ये बात का जिक्र करे तो तब का तब उन्होंने बेस्कॉम वाले से बात कर को फौरी तौर पर वो हटाने की बात करे। दूसरा, ये बारिश का दौर चल रहा है, इसमें ये मोहरिया के ऊपर जो स्लैब्स डाल को है, हर कॉर्नर स्लैब डैमेज हो को है। अक्सर बच्चे ये 2 व्हीलर गाड़ियाँ में आने वाले पैर टेकने या को गिरती, उनके हाथ पाँव टूटने का खदशा ज़्यादा रहता है। वो बात का जिक्र करें। इससे पहले भी जाको हमारे EAWE से बात कराया था, ऐसा है क्या भी करो करके बोला, तो ज़रा फ़ंड की क़िल्लत है करके बोल को बोले थे। अब मैं साहब को बोलिया, उन्होंने फ़ौरन EAWE को बात कर को ये काम के वास्ते 25 लाख रुपए सैंक्शन करे, फ़ौरन करने के वास्ते बोले। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर करा तो इंशाल्लाह। मैं पीछे लगा तो काम को अति आसानी से छोड़ता नहीं, और परेशानी ज़्यादा है, हमें कितना डिले करती हूँ अति परेशानी होती है। पूरी मिल्लत के लिए एक अजीम सानहा है वो हज़रत का विसाल। इस सिलसिले में कैसे पैगाम आए और इस सिलसिले में आपके क्या एहसास हैं? जी, हमारे सबसे पहले वालिद मोहतरमा का 14 रमज़ान में इंतकाल हुआ, और उससे हम दिल बर्दाश्ता थे कि और उस सदमे से अभी बाहर भी ना आ पाए। हमारे वालिद मोहतरम भी 30 रमज़ान को इस दुनिया से रहलत फरमा गए, और बहुत सारे मेहमानों का मुसलसल फ़ोन आता रहा, अभी भी आ रहा है, लेकिन कोविड की वजह से बहुत से रिश्तेदार और मेहमान शरीक नहीं हो सके। और ख़ुसूसन आज जो MLA साहब जनाब अल्लाह सलीम साहब की कोशिशों से जो MLA जाट साहब हमारे घर को आए, इससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। और हमारी ख्वाहिश है कि वो हमेशा हमेशा ताहयात इस इलाके के MLA रहें, और ख़ुसूसन मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, ये एहसासात थे इसलिए कि हज़रत का विसाल हुआ था कोविड की वजह से, तो कोविड के जो इश्यूज़ हैं इस पर काबू पाने का तयक़ुन दिया गया है, और जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी आपने तयक़ुन यकीन दिलाया है। इसके अलावा ये भी बताया है कि मौलाना के अहले खाना से जब भी और जैसी भी ज़रूरत पड़े इस सिलसिले में भरपूर आपके साथ ताउन बरकरार रहेगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।